नमस्कार। हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। दिस इज अ यूनिक philosophy for students. So let us start. First of all, we should understand the definition of education according to Swami Vivekananda. Education is manifestation of perfection already existing in man, and this perfection is in the form of omniscience, omnipotence and omnipresence, means anant gyan, anant shakti or anant vyapakta. Each and every individual have a soul, spirit, and that is full of perfection. So every person is perfect in itself. Next, we should understand what we want the education. तो उससे क्या होना चाहिए? By which the character is formed. What is education? According to Swami Vivekananda, these four pillars are very important to understand the meaning of or the work or function of education in the life of human. Number one is character. So most important work or most important function of education in individual life is character formation. Then comes strength of mind and intellect is expanded. Intellect is expanded, so you become broad-minded, open-minded, and one can stand one's own feet. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर शिक्षा हमें बेरोजगारी के अगेंस्ट एक श्योरिटी नहीं देती है रोजगार की, तो वो शिक्षा शिक्षा कहलाने योग्य नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने इन चार पिलर को एक एजुकेशन सिस्टम में होना बहुत जरूरी माना है। नेक्स्ट, वी शुड अंडरस्टैंड द टूल्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वामी विवेकानंद सेड दैट concentration is the first tool of education. And what do you mean by concentration? Means the full connection to the work in hand. जो आप कर रहे हैं at present, उसमें आपका पूरा ध्यान होना, that is called concentration. And another tool is detachment. Means जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें कनेक्ट हो जाए और तो बाकी सबसे सेपरेट हो जाए। At that very moment, you should separate yourself from all other things, all other issues of your life at that moment. अगर आपने इतना कर दिया, then the success is yours. According to Vivekanand, he said that to me the very essence of education is concentration of mind, not the collection of facts. If I had to do my education over again and had any voice in the matter, I would not study the facts at all. Means कि हम अपने concentration पर work करें, facts तो अपने आप सामने आ जाएंगे। What is the meaning of concentration? You can see that this is having a clear goal. एक कोई भी व्यक्ति कंसंट्रेट तभी हो सकता है जबकि उसको एकाग्रता, एकाग्र मीन्स द वन शार्प टिप. So only the person can concentrate when he or she has a clear goal. According to Swami Vivekananda, he said that it is impossible to acquire miraculous power by some little degree of mental concentration. So you need a full degree of mental concentration when you are doing any work. If you have any failure in that, then find out the point where you have lost your concentration. So how to make this detachment easy? This is not so easy, but still you detach yourself daily. Notice yourself while watching your TV program of your interest. Suppose you are watching a TV program or match, and you can see that your mother is calling you, and if still you are not able to able to respond her. Why? Because you are detached from all the surrounding and you are connected with that. As soon as the extreme attachment comes with the physical things, a man loses himself and he is no more master of himself. He is a slave. उसका वो slave बन जाता है। अगर आप physical things में ज्यादा जुड़े रहेंगे कि बहुत ज्यादा लग्जरी में जुड़े रहें, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लें, तो नेचुरल सी बात है कि आप उसी जैसा ही कंसंट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वही रिजल्ट भी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं conditions of concentration. So there are only three conditions of concentration. First, interest in that field. आपको उस फील्ड में जिससे आपको सक्सेस मिलनी है, आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। फिर एक डिजायर आएगी, एक इच्छा, डिजायर टू डिटैच फ्रॉम अदर थिंग्स, जो आपकी लग्जरी है, जो आपको खुशी ज्यादा देती है बट आपके गोल को हिंडर करती है,
उससे आपका डिजायर उठे कि मैं इससे डिटैच हो जाऊं, फिर डिटैच हो गए तो अटैच विद द फील्ड इन हैंड, जो आप करना चाहते हैं उससे जुड़ भी जाए. So these three conditions are only three conditions are there to develop a full concentration in that. Next, you can see the result of these following these tools of success according to Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स लाइफ में इन दो टूल्स का यूज करते हैं अपनी स्टडीज में, यानी कंसंट्रेशन का और डिटैचमेंट का, देन व्हाट हैपेंस. वो कहते हैं कि इवन अ फूल कैन अकम्प्लिश अ टास्क इफ इट इज आफ्टर हिज हार्ट. दिल से किया गया अगर काम है तो एक रसोईया भी बहुत अच्छा रसोई बना सकता है और एक पॉलिश करने वाला भी बहुत डिसेंट पॉलिश कर सकता है. वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर. आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. अगर आपने सोचा मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर लूं, और वो आप नहीं कर पा रहे हैं, then find the fault in yourself. Find the fault in the concentration level and detachment level. Only there is the fault. And rectify that fault, you will have a success in your life. So always follow these lines said by Swami Vivekanand. He said that if you follow any 5 proven ideas in your life, then you are more knowledgeable than anyone having crammed 2 whole epics. 2 ग्रंथ पढ़े हो, 2 ग्रंथ रट लिए हो किसी ने, उनसे भी ज्यादा आप महान, ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, नॉलेजेबल बन जाएंगे अगर आप सिर्फ 5 परखे हुए विचारों को अपने जीवन में उतार लें. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अच्छे विचारों को जीवन में उतारें. और दूसरी बात स्वामी विवेकानंद ने कहा, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू विल मिस टू मीट एन एक्सीलेंट पर्सन. अगर आप एक अच्छी तरीके से अगर आप अपने से मिलते हैं डेली, तो स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर अपनी इस बात में ये चीज बताई है कि हर व्यक्ति के पास आत्मा है और आत्मा में ओमनी साइंस, ओमनीपोटेंस और ओमनी प्रेजेंस है, यानी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत व्यापकता है. अब इस अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत व्यापकता से इंसान मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो कहाँ जुड़ा रहता है, वो अपने आउटर वर्ल्ड में ज्यादा जुड़ जाता है. और आउटर वर्ल्ड में जुड़े रहने के कारण, यानी कि लग्जरी में, फिजिकल वर्ल्ड में जुड़े रहने के कारण, वो अपने इस इम्पोर्टेंट जो उसके पास जो शक्तियां हैं उनसे वो दूर हो जाता है या उनसे कभी मिल ही नहीं पाता है. अब इनसे मिलने का क्या तरीका है? इनसे मिलने का भी सिर्फ एक ही तरीका है कि आप किसी ना किसी समय मेडिटेट करें. मेडिटेशन से क्या होगा? व्हेन यू विल मेडिटेट, तो आपका जुड़ाव किससे होगा? अपनी आत्मा से, अपने सोल से. और वो आपको अपनी उनकी जो आपकी खुद की पहचान है, उन आपकी अनंत शक्ति है, अनंत आपका ज्ञान है, व्यापकता है, उससे आपको रूबरू कराएगी, आपसे मिलाएगी. तो स्वामी विवेकानंद की एजुकेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि योग को अपने जीवन में उतारें, मेडिटेट करें और इस शक्ति को अपने भीतर से ही निकालें. स्टूडेंट्स के लिए स्वामी विवेकानंद ने सबसे ज्यादा उस समय युवा, और आप लोग सब जानते हैं कि युवा शक्ति को जागृत करने का ये दर्शन है. इन युवाओं को, आज के भी यूथ जो है, उनको ये दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. और टीचर्स को तो बहुत ही जरूरी है ये समझना कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद ये जो यंग जनरेशन है उसको मोटिवेट करते हैं, उस यंग जनरेशन को जागृत करते हैं, और वही काम एक टीचर का भी होता है. तो इस फिलॉसफी में वो ये समझ सकते हैं कि एज अ टीचर वो किस प्रकार अपने यूथ को आगे ला सकते हैं. इसीलिए 12 जनवरी को यूथ डे, युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है. और ये दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आज का दिन जो स्वामी विवेकानंद ने जो टीचिंग दी है, बताया है, समझाया है, वो हम सबके लिए एज अ टीचर, एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट्स, हम सबको समझना चाहिए. और अगर हमने इन 2 चीजों पर, बच्चों की लाइफ में इन 2 चीजों पर काम करवा दिया, कंसंट्रेशन और डिटैचमेंट के ऊपर, तो फिर उनको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. तो किसी ना किसी टाइम में हमें उनको मेडिटेशन, योग के लिए जरूर आगे बढ़ाना चाहिए. दैट्स व्हाई ही सेड दैट टॉक टू योरसेल्फ, अपने से बात करो. वंस इन अ डे, एक पूरे दिन में किसी एक टाइम, वंस इन अ डे टॉक टू योरसेल्फ मींस go within and meditate.
then otherwise you will miss to meet an excellent person. तो यहाँ पर इंसान को इन्होंने excellent person बताया. एक इंसान excellent होता है, लेकिन वो अपने से मिल ना पाए तो फिर ये क्या फायदा होगा इस excellence का? That's why Swami Vivekananda philosophy is most important philosophy of education in this world. This will turn the man making education. गांधी विवेकानंद जी की जो दर्शन है वो मैन मेकिंग एजुकेशन कहलाता है. उन्होंने युवाओं को कितने अच्छे शब्दों में, देखिए कितनी बहादुरी की बात की और उन्होंने मोटिवेट किया. उस समय जो देश को जरूरत थी, आजादी की लड़ाई के लिए जरूरत थी, उस समय स्वामी विवेकानंद ने अपने दर्शन से पूरे भारत को जागृत किया था. उन्होंने कहा, बी अ हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर, फियर इज डेथ, फियर इज हेल, फियर इज अनराइटियसनेस एंड फियर इज रॉन्ग लाइफ. एक भय का जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए. भय, चाहे वो परीक्षा से भय हो, किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पर भय ना होने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप कोई गलत स्टंट करने का भय जो होता है उसको भी हटा के और गलत तरीके के स्टंट करने चले जाएं, जो आजकल युवा कर लेते हैं. नो, दिस इज नॉट दैट. भय का मतलब है कि डर के कारण आप अपने आप से नहीं मिल पाते, आप अपनी अंदर शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं, आप कुंठाओं में आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा जीवन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं होगा. ये सब डर कि एग्जाम बहुत कठिन है, हम नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें डर होती हैं. इन डर को जीवन से हटा देना चाहिए. इनका जीवन में कोई स्थान नहीं है. एवरीथिंग इज पॉसिबल टू एवरीवन अगर वो कंसंट्रेशन और डिटैचमेंट पर वर्क करते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर इट्स स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.